السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک لڑکی اللہ کے ولی کے سامنے غلط حرکت کرنے لگی اور ان پر زنا کا الزام لگا دیا۔ تبھی شیر نے کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ نے آج کی ہماری اس ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا ہو تو ابھی لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آنے والی تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ والے جو دین کی روشنی کو پھیلانے کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ یہ دور کا جب بت پرستی بہت زیادہ عام تھی، لوگ بتوں کو خدا مانا کرتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک اللہ والے وہاں پر ایک ایسی بستی میں آ گئے جہاں پر رہنے والے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا اور ہنرمند سمجھتے تھے، یعنی وہاں پر کوئی بھی اپنے آپ کو عام آدمی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ہر ایک اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہنرمند کہتا تھا۔ اس بستی میں آ کر وہ اللہ والے رہنے لگ گئے۔ بستی کے تھوڑے نوجوان تھے، وہ خود کو بہت زیادہ پڑھا لکھا کہتے تھے۔ ان کو بہت ہی غصہ آتا تھا کہ یہ بھلا کون ہے، یہاں پر آ کر کیوں رہ رہا ہے، کیونکہ ان کافروں کی بستی میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ کے 100 دشمن ہوتے ہیں وہاں ایک دوست بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اب وہ بستی تو کافروں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے ایک بوڑھے آدمی کے دل میں اس اللہ والے کی محبت کو ڈال دیا تھا۔ وہ مسلمان تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنی بستی کے نوجوانوں کو ہمیشہ روکتا تھا کہ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم دن رات ان پر ظلم تراش کیوں کرتے ہو، تم ان کو برا بھلا کہتے ہو، لیکن پھر بھی یہ پلٹ کر تمہیں جواب نہیں دیتے۔ وہ اپنے خدا کو مان رہے ہیں تو کیا تمہارے خدا کو تو برا بھلا نہیں کہتے؟ تو ایک ظالم نوجوان سوچنے لگا کہ اس بوڑھے آدمی کے ہوتے ہوئے ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اگر ہم نے کچھ بھی کیا تو پوری بستی ہماری دشمن بن جائے گی۔ مجھے اب کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کے دوست ظالم نوجوان کہنے لگے، اگر تمہارے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے تو ہمیں بتاؤ۔ نوجوان کہا، ہم اس مسلمان بابا پر چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، لیکن چوری کا الزام ثابت نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ پھر اس نے کہا، یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر چھلا کاٹتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، یہ ہم سب کو نحوست کرنا چاہتے ہیں، پوری بستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ طرح طرح کے ان کے خلاف منصوبے بناتے رہے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی، وہ کبھی مدد اللہ والے کو ہمیشہ بچاتی رہتی۔ اب اس ظالم نوجوان نے اپنے تمام دوستوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں ہر بار ان پر الزام لگایا، لیکن انہیں نہ جانے کون سی طاقت ایسی ہے جو اس بوڑھے مسلمان کو ہمیشہ بچا لیتی ہے۔ اوپر سے جو ہمارے گاؤں کی بوڑھے بابا ہے وہ تو ان کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتے، کہتے ہیں کہ تو تکلیف نہ پہنچا، اب ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں کی یہ بوڑھے بابا جن کو پوری بستی مانتی ہے، یہ اس مسلمان آدمی کو یہاں سے باہر نکال دے۔ اس نوجوان کے ساتھی کہنے لگے، کیا تمہارے دماغ میں کیا کوئی نیا پلان ہے؟ تو کہنے لگے، ہاں میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی ہے جو یتیم ہے، یعنی اس کے ماں باپ دونوں بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی بھائی بہن ہے، یہاں تک کہ کوئی اور بھی اس کا رشتہ دار اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ اگر ہم اس کی غریبی کو سامنے رکھ دیں گے تو اسے دولت کا لالچ دے دیں گے تو وہ یہ کام ضرور کرے گی، اور وہ لڑکی بے پناہ خوبصورت بھی ہے، عورت کے آگے تو بڑے سے بڑے لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بوڑھا بھلا کیا چیز ہے، لیکن ہمیں یہ کام بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ہمارے گاؤں کے جو بوڑھے بابا ہے ان تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے، ورنہ پوری بستی ہمارے خلاف ہو جائے گی، کیونکہ غلط بات تو وہ بھی برداشت نہیں کرتے۔
हमें ये काम बहुत एहतियात के साथ करना होगा। अब नौजवान जिसने ये मंसूबा बनाया था वो चुपके से उस लड़की के पास गया और कहने लगा, हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, तुम जितना चाहोगी हम तुम्हें उतना देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा ये बहुत अहम काम करना है और ये बात किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। जब लड़की उस काम के लिए राजी हो गई, नौजवान ने उसे सारा मंसूबा बता दिया और कहा, बहुत एहतियात के साथ तुम्हें ये काम करना होगा। एक दिन वो लड़की उन अल्लाह वाले के पास गई जो अपने आंखें बंद करके मुराकबे में थे और अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र कर रहे थे। अब एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया। हर बार वो लड़की आती और वहाँ से नाकाम वापस चली जाती। अल्लाह के वली उसकी तरफ देखते ही नहीं, देखना तो दूर की बात नजरें उठाकर कभी उसकी तरफ मुतवज्जो भी नहीं हुआ करते थे। जो नजर का गुनाह नहीं कर सकते वो भला उसके जाल में कैसे फंस सकते थे। लड़की तिल मिलाकर वहाँ से भाग जाती और सोचती कि आदमी तो मेरे बहकावे में आ ही नहीं सकता, बड़े से बड़े लोगों को मैंने बहका दिया है और ये आदमी मेरी तरफ देखता ही नहीं। जब देखता ही नहीं तो भला गुनाह कैसे करेगा। इसी आलम में वो लड़की उस नौजवान के पास आई जिसने उसे भेजा था और कहने लगी, तुमने मुझे बहुत ही मुश्किल काम दे रखा है। मैं समझ रही थी कि मेरे हुस्न के जाल में वो पूरा आसानी के साथ बस जाएगा, लेकिन ना ही वो मेरी तरफ देखता है और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी मौजूदगी को महसूस कर ही नहीं रहा है। वो तो किसी और की दुनिया में खोया रहता है और ना जाने किससे बातें करते रहता है। मैं तो हार गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो जालिम नौजवान उस लड़की से कहने लगे, कमाल की बात है, इतनी हसीन औरत को आदमी देखता ही नहीं, क्योंकि वो बूढ़ा बहुत पक्का है, अपने मजहब पर कायम है, यानी इसकी सबसे बड़ी खूबी है और हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। अगर वो कामयाब हो गया तो इस बस्ती के सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। क्या तुम चाहती हो क्या हम सब अपने मजहब को छोड़ दे? लड़की ने कहा, हरगिज नहीं। नौजवान कहने लगा, मेरे पास एक और मंसूबा है, उसमें तो वो जरूर फंसेगा। लड़की ने कहा, तो बताओ वो क्या मंसूबा है? नौजवान कहने लगा, तुम जिस तरह के कपड़े पहनकर उसके सामने जाती हो वो तुम्हें नहीं देखता। एक काम करो, तुम मुसलमान के कपड़े पहनकर उसके पास जाओ और कहना कि मेरे घर में एक सांप घुस गया है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब वो लड़की अपने आप को अच्छी तरह से छुपाकर यानी कपड़ों में ढककर उन अल्लाह वाले के पास आती है और कहने लगी, बाबा मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है और मुझे लगता है कि आप बहुत नेक इंसान हैं। मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत का शिकार चुकी हूँ। मेरे घर में एक सांप दाखिल हो गया है जिसको मैं तो मार नहीं सकती। अगर आप मेरी मदद कर दे तो आपका एहसान होगा। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो बेटी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। वो लड़की सोचने लगी, किसी ने आज तक मुझे बेटी नहीं कहा, लेकिन अब भी वो लड़की गुनाह करना चाहती थी। पैसों की लालच में उसने कहा, जल्दी चलिए। वैसे तो लड़की के घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन एक बहुत बड़ा बुत उसके घर में मौजूद था। वो किसी औरत का बुत रखा हुआ था। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा शेर का बुत यानी शेर का पुतला भी वहाँ मौजूद था। अल्लाह वाले जिन्होंने अब तक उस लड़की को नजर तक उठाकर नहीं देखा था, लेकिन जब बेटी कह दिया तो बाप की नजर से उसे देखा। वो लड़की अच्छी तरह से मुसलमान वाले लिबास पहनी हुई थी। अल्लाह वाले उसके साथ उसके घर आ गए। लड़की ने कहा कि सांप उस तरफ है, आप जाए और देखे, और फिर जहरीली मुस्कुराहट के साथ अल्लाह वाले को देखती रही। अल्लाह वाले ने पूरे घर में सांप को देखा, लेकिन सांप कहीं नहीं मिला। जब बहुत कोशिश कर ली तो थक कर बैठ गए और कहा, बेटी सांप तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। लड़की ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं आपके लिए ताकत का शरबत लेकर आती हूँ, उससे आपको ताकत आ जाएगी। जब वो लड़की शरबत लाने के लिए अंदर गई, उसने एक जड़ी बूटी उस शरबत में मिला दी, लाकर उस अल्लाह वाले के हाथ में दे दिया। अल्लाह वाले कुछ देर खामोशी के साथ देखा और फिर उस शरबत को उन्होंने पी लिया। अल्लाह वाले को क्या होता, लेकिन उन पर हल्की सी बेहोशी
दारी हो गई। ये सब भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। जब वो हल्की सी बेहोशी में जाने लगे तो लड़की ने मौके का फायदा उठाया और अपने कपड़े को फाड़ना शुरू कर दिया ताकि इल्जाम लगाया जा सके कि इन्होंने मेरी इज्जत पर हमला किया है। जब उसने ये काम कर लिया तो शोर मचाना शुरू कर दिया। नौजवान और उसके दोस्त जो पहले से तैयार खड़े थे, जब उसका शोर सुना वो लोग भी दौड़ते हुए घर में दाखिल हुए और पूरी बस्ती को उन्होंने जमा कर लिया। यहाँ तक कि अपने गांव के उस बूढ़े आदमी को भी बुला लिया जिसे उन अल्लाह वाले पर बड़ा भरोसा था। लड़की रो रो कर कहने लगी कि आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। वो लड़की जोर जोर से बयान कर रही थी कि इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। मैं एक यतीम और बेसहारा लड़की हूँ। इन्होंने मेरा बहुत फायदा उठाया है। ये मेरे घर में दाखिल हो गए और मेरी जवानी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कोई है जो मेरी मदद करे। और जब सारी बस्ती के लोग वहाँ खड़े थे, इल्जाम लग चुका था। वैसे तो वो बेहोश थे। जब वो बेहोशी से बाहर आए तो देखा पूरी बस्ती वहाँ पर जमा है। और जब उन्हें पता चला कि उन पर इस लड़की ने इज्जत को लूटने का इल्जाम लगाया है तो बहुत शर्मिंदा हुए और कहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसे तो मैंने बेटी कहा था। क्या एक बाप अपनी बेटी पर कभी नाजायज नजर भी डाल सकता है? लेकिन वो अल्लाह वाले समझ चुके थे ये चाल है। उस गांव का जो बूढ़ा आदमी था जिसे सब लोग मानते थे, वो कहने लगे, मैं तो आप पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन आपने मुझे इन सब के सामने शर्मिंदा कर दिया। ये लोग मुझे इतना मानते हैं कि मेरे कहने पर इन्होंने कभी भी आपको बुरा भला नहीं कहा। आप यतीम बेसहारा लड़की को लूट कर बहुत बुरा काम किए। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं अपनी सफाई के लिए क्या पेश करूं? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लेता हूँ। लोगों ने कहा, तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, बल्कि अब हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे नहीं, हम तुम्हें सरे आम फांसी दे देंगे। अल्लाह वाले ने कहा, कुछ देर के लिए मुझे बस 2 रकात नमाज अदा कर लेने दो। उसके बाद अल्लाह वाले ने नमाज अदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह तू मेरा जमीन बन जा। जो इल्जाम मुझ पर लगा है इस इल्जाम को मुझ पर से हटा दे, कोई सबक पैदा फरमा दे। उसके बाद अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए उठे, लोगों के पास आए और कहने लगे, ये लड़की कहती है कि इस घर में वो अकेली थी, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ एक औरत और भी है और वो औरत मेरी भी गुनाही का सबूत है। वो लड़की हैरान परेशान कहने लगी, मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। वो लोग कहने लगे, तुम अपने आप को बचाने के लिए ये सब झूठ बात कर रहे हो। अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं, ये अकेली नहीं थी, बल्कि इसके घर में एक और औरत थी। ये 2 औरतें यहाँ पर मौजूद थी। वो लोग कहने लगे, चलो बताओ कहाँ है वो औरत? अल्लाह वाले कहने लगे, सामने वाले कमरे में। चलो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वो लड़की हैरान थी, हक्का बक्का थी। कमरे का दरवाजा खुला तो वहाँ किसी औरत का बुत रखा हुआ था। उसको देखकर अल्लाह वाले कहने लगे, देखो वो औरत है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे कि तुम्हें औरत नजर आ रही है, ये हमारा बुत है, इसको हमने मिट्टी से बनाया है, ये बेजान है। अल्लाह वाले कहने लगे, अच्छा अगर मैं कहूँ तो ये चलना शुरू कर दे तो क्या तुम लोग बात को मान लोगे? तो वो लोग अल्लाह वाले को तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग थोड़ा ठहर जाओ। उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और करीब आए। उस बुत से कहा, तेरे सामने अल्लाह का एक ऐसा बंदा है खड़ा है जिस पर गलत इल्जाम लगा है, जिनाकारी का, इज्जत लूटने का। क्या तू अल्लाह की शान के वास्ते जिंदा नहीं होगी? क्या तू अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेगी? तुझे इन आदमियों ने मिलकर बनाया है, इन बस्ती वालों ने बनाया है, लेकिन इस कायनात की काली है मिट्टी का एक जर्रा भी उसके मुताबिक चलता है। बेजान मिट्टी को भी वो जिंदा कर देता है। अल्लाह के हुक्म से क्या तू जिंदा नहीं हो जाएगी? अल्लाह के
वली का इतना कहना था कि वो औरत का बुत जो कुछ पहले बिल्कुल बेजान था, अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था, वो जिंदा हो गई, चलने लगी। जब वो जिंदा हो गई तो तमाम पंडित उसके कदमों पर गिर पड़े और कहा, हमारा बुत तो जिंदा हो गया, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। और उनके कदमों में वो सारे के सारे लोग लिपट गए। वो औरत का बुत कहने लगा, हट जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, अल्लाह वाले जिनकी शान में तुम लोगों ने गुस्ताखी की है, तुमने इस पाक साफ इंसान को बुरा भला कहा है, ये तो इस लड़की को बेटी कहते हैं, ये बेटी की इज्जत पर कोई हमला कर सकता है, तुम सब कसूरवार हो। मैं गवाही देती हूँ कि ये पाक है, पाक इंसान है, जिस रब को मानते हैं उसी की हुक्म से मैं तुम सब के सामने आज कह रही हूँ, अल्लाह एक है, वही सबका खालिक है, यही सबका मालिक है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर एक शेर का बुत भी मौजूद था। वो शेर भी फौरन जिंदा हो गया और वो गुर्राता हुआ उस जालिम नौजवान और उसके साथियों की तरफ लपका। ऐसा लग रहा था न जाने गैब से कौन सी ताकत आ गई है और वो भी ताकत की वजह से ये सारा काम हो रहा है। एक बुत जिंदा होकर चल पड़ा। अल्लाह ताला की गवाही थी और वो शेर उन पर हमला करके उनको जख्मी कर रहा था। उसी वक्त अल्लाह वाले ने कहा, रुक जाओ ए शेर, तू भी रुक जा, अल्लाह के हुक्म से रुक जा, मैं इन सब को माफ करता हूँ। ये नादान है, ये नहीं जानते कि इनके हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं। मैं तो एक ऐसे सच्चे दीन को फैलाने के लिए आया हूँ। बस हम एक अल्लाह को मानते हैं और उसी अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया है। मैं दावत देता हूँ इन सब को, अगर ये अल्लाह ताला को मान ले तो बस मैं खामोशी से यहाँ से चला जाऊँगा। तमाम गांव वाले तो वैसे ही है, खास तौर पर वो जालिम नौजवान ये सारा नज़ारा देखकर हैरान हो गया था और सबसे ज्यादा शेर ने उसको जख्मी कर दिया था। उसने कहा, मैं माफी मांगता हूँ। फिर वो नौजवान गांव के बूढ़े के पास आया और कहने लगा, मैंने आपसे छुपकर एक बहुत बड़ी चाल चली थी। दरअसल ये अल्लाह वाले बेगुनाह है और इन्होंने किसी की इज्जत पर कोई हमला नहीं किया है। ये लड़की हमारी भेजी हुई है और इसने पैसों की खातिर ये सब कुछ किया है। अल्लाह ताला के हुक्म से तो उस बुतों ने गवाही तो दे दी है। मैं आप सबके सामने कलमा पढ़ता हूँ और अब पूरा गांव मुसलमान हो गया। अल्लाह वाले ने जब अपना काम मुकम्मल किया, वहाँ से रुखसत हुए, फिर किसी और मंजिल की जान, फिर किसी और को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प वाक़ये के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अब हमें दूसरी वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।